Hmm. Good afternoon, students. As you all know that we have studied paragraph 1. Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. Now today we are going to study paragraph 2. Evelyn Glennie's loss of hearing. Para 2. Evelyn Glennie's loss of hearing. Part 1. And this is part 1, the sound of music, and we were discussing about Evelyn Glennie's, as I told you yesterday. So today let us start para 2. As you all know that Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. जैसा कि मैंने कल आपको बताया था एवलिन ग्लेनी के बारे में कि एवलिन ग्लेनी was not born deaf. She became deaf gradually. तो धीरे धीरे क्या नाम है डेफ होती है. एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की जो पावर थी, जो कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ नोटिस करती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और ये नोटिस तब करती है जब वो एवलिन ग्लेनी 8 साल की होती है. When she was 8 years old, Evelyn was waiting to play the piano. What she was going to do? She was going to play the piano. When she was going to play the piano, her mother, Evelyn's mother, noticed her. Something was going to happen to Evelyn Glennie. Something was wrong with Evelyn Glennie. They called her name and she did not move. Evelyn's parents called her name, but she did not answer. She did not reply, and she did not move. I suddenly realized she had not heard, said Isabel Glennie. The name of her mother was Isabel Glennie. Isabel Glennie was calling her name, but Evelyn Glennie did not respond, did not answer her calling. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. As she was hiding her life, she was hiding her flaws from her teachers and friends. जैसे कि वो अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से हाइड कर रही थी, छिपा रही थी जो इसके अंदर जो फ्लॉ था, जो लॉस ऑफ हियरिंग जो इसके अंदर थी, एवलिन ग्लेनी के अंदर जो लॉस ऑफ हियरिंग जो थी वो छिपा रही थी, वो हाइड कर रही थी, इसे किसी को पता ना चले. देखिए सारे बच्चे करते हैं, अगर आप भी उसकी जगह पे होते तो आप तो वही करते. अपने फ्लॉज को, अपने ड्रॉबैक को कोई नहीं बताना चाहता. Evelyn was in the same boat. Evelyn was doing the same thing from her teachers and friends as well. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to eye specialist. When she was 11 years old, when Evelyn Glennie was 11 years old, जब एवलिन ग्लेनी 11 साल की हुई, तो उसके मार्क्स जो थे डेटोरेट होने लगे, रिड्यूस होने लगे, कम होने लगे. और तब उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे अर्ज किया कि प्लीज टेक एवलिन होम. एवलिन को आप घर ले जाइए एंड कंसल्ट आई स्पेशलिस्ट, और किसी एक स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, बिकॉज शी वॉज डूइंग पुअर एंड पुअर डे बाय डे एंड शी वॉज नॉट गेटिंग मार्क्स. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसकी मदर ने किसी स्पेशलिस्ट से बातचीत की तो ये बात पता चली कि जो उसकी पावर ऑफ हियरिंग थी, जो सुनने की उसके अंदर जो शक्ति थी, वो ग्रेजुअली इम्पेयर्ड होने लगी, वीक होने लगी, कम होने लगी.
उसकी जो नर्व सिस्टम थी वो डैमेज होने लगी, उसके ईयर की जो नर्व सिस्टम थी वो डैमेज होने लगी, धीरे धीरे खराब होने लगी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a test. और उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया, स्पेशलिस्ट ने, ENT के डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी उसके पेरेंट्स को कि इसके कान में हेयरिंग एड्स लगेंगे। हेयरिंग एड्स होता है, क्या नाम है, कान में लगाते हैं, जिससे जो इनके अंदर लॉस ऑफ हियरिंग होती है वो लगाने के बाद, उस मशीन को लगाने के बाद काफ़ी इसलिए वो सुन सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स को ही डॉक्टर ने यही एडवाइस किया कि आपकी बेटी को भी, यानी एवलिन ग्लेनी को, लॉस ऑफ हियरिंग से जो सफ़र कर रही है उसे भी हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने ये भी एडवाइस किया कि उसे डेफ स्कूल में आप सेंड कर दें, भेज दें। Everything suddenly looked black, says Evelyn. When Evelyn heard all of these things, she became stunned, she became surprised, she became shocked. जब उसे ये सारी बातें पता चली अपने बारे में तो बहुत सरप्राइज हो गई, शॉक्ड हो गई, नर्वस हो गई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल हम लोग पैराग्राफ 3 स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एवलिन ग्लेनी के साथ क्या हुआ। थैंक यू सो मच।